Yes, good morning to everyone. So good morning to everyone. Good morning, sir. So now the 10 questions are ready for you. Very simple 10 questions. You have to just note down this link. So today's class we will start with just 10 mathematical based Python questions. And I have requested everyone to note down this link, joinmyquiz.com, and enter the code that is there in front of you. Yes, everyone is ready. Yes, Veer Pratap. Good morning, Veer Pratap. गुड मॉर्निंग सर। वीर प्रताप है ये वेबसाइट खोलो, ये वाली join my quiz, joinmyquiz.com. एक मिनट सर, एक मिनट सर। So this is a mathematical based Python quiz. 10 questions will be there, and 30 seconds will be given to you for each question. So this is the website, and this is the code you have to enter to activate this quiz. So should I start the quiz? यस, वीर प्रताप हो गया? वीर प्रताप वेबसाइट खुल गई? यस, वेबसाइट खुल गई? So people are actually joining very slowly, one by one. People are joining here, and they will be taking a lot of time. So last time I am sharing the screen.
and in the next 1 minute I am going to start the quiz. Joinmyquiz.com is the link, and you have to enter this code 746175. यस भव्या, श्रिया, वो हो गया बेटा कनेक्ट आप लोगों का? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पार्टिसिपेंट लिस्ट में आ ही नहीं रहा किसी का नाम. No participants have joined. Ask them to joining the instructions. Not joined. हाँ जी, Total 10 join हो चुके हैं. तो इसको क्या हो गया? It is still saying that no participants have joined. कर ली सर ज्वाइन. ओ आपका तो ज्वाइन हो गया. मेरा यहाँ से क्विज ही नहीं स्टार्ट हो रहा. दैट इज सेइंग दैट इज नो वन हैज जॉइंड द क्विज. To play this game, use this to open the device and enter the. यस, ये नया कोड एंटर करना अभी. Yes, so this is activated. Vanshika has joined, the Beep has joined. Yes, my request to everyone is, this is the link. The link is same. You have to enter a new code 65936, sorry 638. और ये जो बेसिकली क्विज है, ये पाइथन मैथ, थोड़े मैथमेटिकल फंक्शंस है पाइथन के, जिसके बेस पे ये क्विज है. Yes, so now it's working. So I am going to start this one. Yes, so this is the question now on your screen. So this was a quite easy question.
Again, an easy question. So this is the third question you have now. This is basically the absolute function. Yes, the next one. Very easy question. So time is up. Move to the next question. Be quick. सर 1 मिनट वेट करना, मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ. Yes, time is up. Vanshika is leading.
So this is the analysis for this question. 2 raised to power 2, so we have 12 as on this side and the rest on this. Yes. So now the quiz is over. So these are the questions that we have. Now this is the dashboard we are getting, and Ajay Pratap is at the number 1 position. Yes, well done, Ajay Pratap. And he came there. Only one wrong question by Ajay Pratap, one wrong question by Vanshika, but now maybe he's faster. Just by 50 score, he is leading over Vanshika. So so this is the score. You can see your which question you have made the wrong. I will not go into too much analysis of this. So were there errors? कोई था इसमें error? कोई था क्विज में? सर 8 raised to power 3 वो इस वाला कैमरा कर लो question- बेटा ऑन कैमरा. यस, क्विज में कहीं पे किसी को की कोई एरर लगा हो कि दैट इज दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग और समथिंग वाज रॉन्ग ओवर देयर इन द क्विज. ठीक है, 2-3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. आई फाउंड दैट दे वर रियली नीडेड टू बी ए बिट. थोड़ा सा अगर हमने क्विज किया ही है तो उसका थोड़ा फुल यूटिलाइजेशन कर लेते हैं. एंड वी लुक एट दी फ्यू क्वेश्चंस. यस, एक हमने किया था, इसके अंदर था एक फंक्शन था एब्सोल्यूट. So math is not defined for ABS. So math ABS एब्सोल्यूट के लिए कौन सा फंक्शन था? किसी ने नोट किया एब्सोल्यूट के लिए कौन सा फंक्शन था? ABS था या कुछ और था? Sir, it was simply written ABS and in bracket minus 7.25. कोई अच्छा, ठीक है, तो ये मैथमेटिकल लाइब्रेरी का फंक्शन होगा नहीं. तो सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट मींस दैट इज इट रिटर्न्स द वैल्यू विदाउट एनी साइन. ना प्लस आएगा इसमें, ये ना माइनस आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी. ठीक है जी. सो दिस वाज वन क्वेश्चन. द अनदर क्वेश्चन आई नोटेड, एक था मैथ डॉट पाई. यही कर लेते हैं. सो ठीक है, कि इसमें क्या था कि पाई की वैल्यू बाकी सारी कुछ ऐसे दी हुई थी. एक तो पाई जो नोटेशन होती वो दी हुई थी, एक पाई 31 पॉइंट समथिंग दी हुई थी, एक ही वैल्यू थी जो 3.142 लाइक दिस वाज रिटन ओवर देयर. सो आई थिंक देयर इज नॉट एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन. जो दो क्वेश्चन इसके अंदर सबसे अच्छे थे इसके अंदर, दैट वाज प्रिंट मैथ डॉट सी 2.6. इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है?
So फिर we इसका have मतलब शायद राउंड ऑफ होगा द नियरेस्ट नंबर। कोई नहीं, आप हैंड रेज किया करो भव्या, जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है, आप ही करो एक्सप्लेन, कोई बात नहीं। यस, यू एक्सप्लेन दिस। फिर इसका आंसर 3 है। सो मुझे लगता है इट इज राउंड ऑफ फंक्शन की तरह, अ काइंड ऑफ इसकी आउटपुट क्या आएगी? 3। 3 आएगी, 3, ठीक है। सो बिफोर आई टेल यू अबाउट दिस फंक्शन, अब मैं इस फंक्शन को कैसे करता हूँ? दी व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ सील इज देयर? CEIL, इसका वर्ड मीनिंग क्या है? यस वंशिका। सील का मतलब होता है इससे ऊपर, कोई भी चीज Yes, है yes. इससे ऊपर। So like if you have to represent our roof, we say that ceiling fan. So the fan that is there in the on our roof. तो इसके लिए क्या है हमारे पास? देखो इसमें होता क्या है बेसिकली, जब भी ये हम सील फंक्शन अप्लाई करते हैं, इट रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हमेशा सील का मीनिंग है टुवर्ड्स द अपर साइड। 2.6 से अपर वैल्यू इंटीजर की साइड पे कौन सी है? जैसे अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास लाइन है, दिस इज द वैल्यू 2, दिस इज द वैल्यू 3, और लेट्स से यहाँ पे हमारे पास है 2.6 है यहाँ। तो सील का मीनिंग क्या है? सील इज टुवर्ड्स द अपर साइड। जब भी हमने सील की बात करनी है, तो जो उसके नियरेस्ट अपवर्ड साइड में जो वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू दी हुई है उससे बड़ी इमीडिएटली इंटीजर वैल्यू, दैट इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन। सो लेट अस रन ऑन दिस, ठीक है। और इससे मिलता जुलता जो दूसरा क्वेश्चन था, दैट वाज ऑन द सेम क्वेश्चन वी हैव फ्लोर फंक्शन, ठीक है। तो फ्लोर फंक्शन का क्या मीनिंग होता है? इफ वी गो टू दिस पेंट, तो फ्लोर फंक्शन में जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू दी हुई है उसमें से छोटी वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी है? दैट इज द फ्लोर। फ्लोर मींस डाउनवर्ड साइड। फ्लोर मींस हम अपने जो where we are sitting, we say that is the floor to us. So that value is basically the nearest integer value. So that is the 2 is the answer for this question. So let us try to run this one, and you see that 2 will be the answer in this. बाकी और किसी फंक्शन में किसी को कोई डाउट है, लाइक इन एनी मैथमेटिकल फंक्शन, any question you have? So that is just was the exercise to rebrush the things that we do on a day-to-day basis. पावर फंक्शन था एक इसमें, तो पावर फंक्शन आपको पता ही है, दैट इज दी हाउ वी कैलकुलेट द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर। यस, Excuse me, स्टिल sir. किसी की कोई डाउट है, सो यू कैन रेज द क्वेश्चन। Sir, I have a question. यस, थोड़ा लाउडली बोलना बेटा, थोड़ी आवाज कम आ रही है। Sir, I have a question. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक पूछो। क्वेश्चन में 8 raised to power 3 था, उसके ऑप्शन सही नहीं थे। रिपीट करना क्वेश्चन। 8 raised to power 3 means power function of 8. हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। सो दैट वाज पावर फंक्शन था हमारे पास POW 8 रेज टू पावर 3। ये बेसिकली पता किस तरह का क्वेश्चन था? ये लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था। अब जब भी आपने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप कैलकुलेशन, यस भव्या, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। हाउ यू विल बी गोइंग फॉर द आंसर इन दिस क्वेश्चन? यस, अदर देन भव्या, वंशिका, एनीवन एल्स? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। Sir, I also don't know the answer, but I thought it would not be 2-digit numbers.
So I eliminated those two numbers, and it also could not be the five numbers because it was not close to that. So close to that was 6561. So I took that. ठीक है, इसके अंदर था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये श्रिया ने। दैट इज, इस क्वेश्चन में क्या था बेसिकली, इसके अंदर 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो बड़ी छोटी छोटी वैल्यू थी, लाइक 1 ऑप्शन वाज देयर लाइक 64 था, और एक और सिंगल डिजिट में वैल्यू थी, मे बी 8 था इसका आंसर। दो वैल्यू और थी, लाइक 64 समथिंग, कुछ भी ले लेते हैं ऐसे, एक ही वैल्यू ये मान लेते हैं, दूसरी, ठीक है। तो ये दोनों जो बड़ी वैल्यू थी, इसमें से क्या है, जब भी हम इवन नंबर की पावर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा इवन पावर में आए। तो उन 4 ऑप्शन में से जो 2 वैल्यू तो बड़ी छोटी थी, जिसको आप सीधे देख के डिस्कार्ड कर सकते हो, 2 वैल्यू बड़ी थी। अब जो 2 बड़ी वैल्यू थी, जो जिनमें क्लोज कंपटीशन था, तो उनमें एक वैल्यू और थी, एक इवन थी। और कभी भी इवन नंबर की जो पावर है, दैट कैन नॉट बी कम इनटू ए ऑड। इवन से हमेशा पावर के केस में इवन नंबर ही जनरेट होता है। सो दैट्स वे you can fastly answer that question, and the exact answer of this question is clear, that is 512। ऐसा ही था क्वेश्चन? Yes, sir. But this was not given in the options. 8 raised to power 3 था या 4 था? 4 था मेरे हिसाब से। So 8 raised to power Sir, 3 3 था, था। but ये option हाँ। नहीं था। 8 raised to power कितना था? 8 raised to power 3 3 था, but 512 was not in the option. So I don't know how he has gone with the question। मेरे को तो That's ऐसा why I लगा था said that. क्वेश्चन में 8 रेज़ टू पावर, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में गड़बड़ हो, मे बी, आई डोंट नो हाउ ही हैज गॉन फॉर द क्वेश्चन। बट मेरे को जो लॉजिक नजर आ रहा था कि दोनों में से ऑड और इवन में से वी शुड गो विद द इवन नंबर, बट अगर इस कैलकुलेशन में गड़बड़ है, सो आई थिंक दैट इफ दैट शुड नॉट बी द वे, वी शुड हैव द एग्जैक्ट कैलकुलेशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। सो मे बी दैट मे बी द रीजन, मे बी गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। सो ये भी किसी का रेडीमेड क्विज ही है, इट्स नॉट द केस दैट इट्स ए परफेक्ट केस। So we can look upon, I will check it out, the question क्या था उसमें, and we'll go through। But फिर भी हमें अपना लॉजिक क्लियर होना चाहिए। That's not a basically sort of a competition जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि who is the first one, but how we are improving and how we are learning, that is the important thing that we do. So my request to everyone is Jasmine, Shriya, Priyanshi, Veer Pratap, So I'm facing some network problem. That's okay, Navdeep, Tarunjot, Pawandeep, जसलीन, अजय प्रताप, हर्षित एंड राजवीर। और थोड़ा क्लास में जल्दी आया करो, क्विज करवाने में क्या 20 मिनट तो ऐसे निकल जाते हैं। दैट इज वी हैव टू सेटल डाउन इन द क्लास एंड देन गो विद दिस। यस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग जिनके पास लिंक नहीं आ रहा अभी तक? एक वीर प्रताप है, ही इज नॉट गेटिंग द लिंक। एनी अदर स्टूडेंट हु इज नॉट गेटिंग द लिंक फॉर दिस क्लास, ऑनलाइन क्लास? कोई है ऐसा और स्टूडेंट? So no other student. So let's come back to the today's सर question। मैं जीमेल ही चेक करता, मैं सिर्फ नोटिस बोर्ड चेक करता हूँ। हाँ ठीक है, नोटिस बोर्ड में ही आता है बेटा, नोटिस बोर्ड में ही आता है, लेकिन नोटिस बोर्ड में 11E का आज नहीं आया लिंक कोई भी, या आईपी का नहीं आया? आईपी का नहीं आया सर। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या है, ठीक है। पी के बाद फिर वो अगला लेसन आ जाता है। चलो कोई बात नहीं। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट इज, अगर किसी भी स्टूडेंट के पास सुबह 9 बजे तक लिंक नहीं आता, जस्ट ड्रॉप मी दी व्हाट्सएप मैसेज कि सर मेरे पास क्लास ज्वाइन करने के लिए लिंक नहीं है। आई विल इंडिविजुअली सेंड दैट पर्सन दैट द क्लास लिंक, दैट्स ऑल। सो टुडेज टॉपिक दैट वी हैव टू स्टार्ट इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। So before I launch into the frequency polygon, I have basically framed few just revision sort of questions with me. So I request Mr. Veer Pratap, Tarunjot, why I am making request again and again, Mr. Bajwa, Harshit, Ajay Pratap and Jasleen. So I have to now put extra 10% energy just to rename you ऑनरेबल पर्सन्स इन द क्लास। प्लीज इतना कोऑपरेट करो आप क्लास के अंदर कि मैं ये ना बोलना पड़े कि कैमरा ऑन करो। अगर किसी को कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है तो उसका एक प्रोग्राम बना के भेजो मेरे को कि सर ये कैमरा ऑन करने से इतना हमारा एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ रहे हैं क्लास में।
So my first question is कि pie chart में where we apply the pie chart, in which scenario we apply the pie chart? Yes, just raise your hand who's interested to answer. In which scenario we go for pie chart? Yes, Jasleen. So, bro, sir, for making the comparisons, Making the comparison, it's absolutely fine, but now elaborate something else also. Yes, anyone else wants to answer? Pie chart is the chart that is no exceptionally different from the other charts, and that we discussed on that day. That is how we go with the pie chart. What we do in pie chart, basically we analyze one variable. We analyze one variable on a chart. Like in our example, we discussed that how the votes are basically attained by the different candidates in an election. So one variable we can depict on our chart. That is the important thing about the pie chart. Then we focused upon one more very important point, is independent versus the dependent variable. So elaborated on that day by Vanshika. So Vanshika will not participate. Rest, anyone who is interested to answer, what is the difference between the independent variable and the dependent variable? Yes, Shriya. So dependent variable is such a variable which depends upon any other variable. For example, like we have we have considered an example of candidates and votes. So the candidate which wins depends upon the number of votes it gets. So vote is an independent variable and candidate is a dependent variable. How the candidate is a dependent here? So the example you have taken rightly, but it is only the example of a independent variable. Here in this example, there is not a single dependent variable. Candidate dependent किसके ऊपर है? आप इलेक्शन लड़ रहे हो ना लड़ो, जो मर्जी करो आप, ठीक है? So candidate is not a dependent variable, ठीक है? Votes as well as candidate, both we have considered them. जब हम एक ही variable को discuss करेंगे, so in that scenario that variable is always a independent variable. When we discuss the relationship between two variables, so then can be the scenario that one variable is acting as an independent variable and the other is acting as a dependent variable. Like we took the example of demand and price. So we said that price, we are assuming that it is independent. If there is a fluctuation in price, so then there will be having a relevant effect on the demand side. अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, so we say that डिमांड कम हो रही है. अगर किसी की प्राइस कम हो रही है, so we say उसकी डिमांड बढ़ रही है. So when we have a relationship scenario, so then we have the independent and dependent variable. Yes, Vanshika, you want to say something here? Clear? So you know the Vanshika and the commerce team, we have the section DEF. So they are the great resource in this question में, because they study in economics independent and dependent variable. Like एक पैरामीटर हमने और डिस्कस किया था, एक्सप्लोर्ड पैरामीटर. एक्सप्लोर्ड पैरामीटर हमने पाई चार्ट में डिस्कस किया था. दैट वाज द पार्ट ऑफ पाई चार्ट मेथड. तो यस, other than Shriya, other than Vanshika, and other than Bhavya also. Yes. So there is a condition in my answer that the three persons can't participate: Shriya, Bhavya, and Vanshika. Yes. Anyone else? Yes, Priyanshi. चलो ठीक है. यस, जैस्मिन आप बताओ बेटा. जैस्मिन को. Sir, in Explode, the part of the pie chart is splitted from the whole pie chart. Yes, yes. वो जो वहां पे मैं लिखता था 0.1, 0.2, 0.3, वो 0.1, 0.2, 0.3 क्या चीज है? उसका बड़ा स्पेसिफिक मीनिंग है. मैंने
लेक्चर से पहले कॉपी के ऊपर नोट करके रखा हुआ था। यस, नाउ एनीवन कैन पार्टिसिपेट। यस, नाउ देयर इज नो कंडीशन फ्रॉम माय साइड। एनीवन? यस भव्या। सर उसका मतलब था कि 0.1 मीन्स कि 1 यूनिट 0.1 यूनिट अवे, 0.2 मीन्स 0.2 यूनिट अवे, मतलब उतनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी जितना हम वो हाँ। वैल्यू लिखें। वेरी गुड। 0.1 एंड 0.2 अवे फ्रॉम, कहां से पॉइंट अवे जाना है? that basically arc will go away from, yes, from the rest part of the pie chart. no, yes, Shriya will intervene here. Shriya. So from the center of the pie chart. Yes. So 0.1, 0.2, maybe it may be in centimeters, or I don't know the unit, that which unit they have used. So that much distance away from the center of the circle. So this we have to keep in mind, that we are talking about the center of the circle. So one more request from my side. Veer Pratap, Rajveer, Harshit, Pawandeep Singh, Abhinandan, Jasleen, Navdeep Singh, and Mr. Ajay Pratap. So next question from my side is, we have discussed about the hexadecimal color coding. तो कोई मेरे को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दे, और बाद में ये कलर कोडिंग के बारे में। Yes. So we have the frequency of their participation, your participation is very high. बाकी क्या? यस, वीर प्रताप आप भी कोई पार्टिसिपेट कर दो बेटा, कोई आंसर कर दो एक आधा। वीर प्रताप है, पवनदीप है, अभिनंदन है, नवदीप सिंह है, मिस्टर बाजवा इज देयर, हर्षित जैन इज देयर। नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम ए लार्ज चंक ऑफ द क्लास। अजय प्रताप सिंह, नाम बड़ा जबरदस्त है, अजय भी है प्लस प्रताप भी है बीच में। वेरी स्ट्रॉन्ग नेम यू हैव, वेरी लेंथी नेम, अजय प्रताप सिंह। आगे जाके मिनिस्टर बनोगे मेरे को लगता है, तुम इतना बड़ा नाम रखा हुआ है। आई डोंट नो कहाँ चाय पीने चले गए हैं ये सारे। चलो ठीक है। यस भव्या। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 डिजिट्स हम कंसीडर करते हैं। जैसे डेसिमल सिस्टम में देयर आर 10 डिजिट्स कंसीडर्ड फ्रॉम 0 to 9, and similarly hexadecimal में from 0 to 9 along with the alphabet from A to A B C D E F 6 F. And then color coding, any of these combinations can be used for color coding, and उसके लिए we have to put a hashtag in front of writing the 6 codes. Yes, very good. Thank you, Bada. Thank you very much. So basically, hexadecimal color coding is there, that we have to use 6-digit hexadecimal number to generate a color code for that. And for writing that, we have to put that in double quotes, and the number should be preceded by a hashtag. Clear? So hash symbol should be there, and any of the 6-digit you can put over there to generate a color in Python. So coming back to the today's main question is there, that is frequency polygon. So frequency polygon is just a copy paste of the earlier one is there. No change is there. You see here in this polygon, for generating a polygon, frequency polygon, you can see in the left hand side we have used this histogram method only. Histogram method से ही polygon का generation होगा. So you can see at the top, if we just connect the top center points of each bins, then we obtain a relative frequency polygon. ये relative frequency polygon हम कैसे generate करते हैं? By joining the top middle points of these bins, like this. और इसको generate कैसे करना है? You know the code is written in front of you. So I have copy pasted this the same code. This is the code. जो लास्ट प्रोग्राम है उसी को यूज करना है. देयर इज नॉट ए सिंगल डिफरेंस हियर इज देयर. सिर्फ एक पैरामीटर का डिफरेंस है कि यहाँ पे आपने मेंशन करना है ये हिस्ट टाइप इज इक्वल टू स्टेप. हिस्टोग्राम मेथड के अंदर डाटा भी सेम है. ऑल द डाटा इज द अर्लियर वन. हिस्टोग्राम मेथड का नाम है. ये डाटा भी सेम है, वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यूज किया. बस यहाँ पे क्या करना है, एक एट्रीब्यूट ऐड करना है हिस्ट टाइप, कि ये हिस्टोग्राम जो है किस टाइप की है. हिस्टोग्राम टाइप इज इक्वल टू स्टेप.
तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास इस तरह का जो है वो फिगर हमारे पास बन जाएगी। और ये इस तरह की फिगर क्यों आ रही है, बिकॉज मैंने यहाँ पे 5 यूज किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे 45 यूज करोगे तो यू विल गेट ए डिफरेंट। ये जो पॉलीगन है इसमें अब ये देखो 42 45 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एंड वही है बेसिकली बेसिक जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर यूज किया हुआ है। सिर्फ एक एडिशनल पैरामीटर यहाँ पे ऐड करना है, दैट इज हिस टाइप इज इक्वल टू स्टेप। बाकी जिस तरह का डाटा आप, अगर मैं यहाँ पे 15 कर दूंगा 1 5 15, तो आपको पता ही है 45 वाला जो बार है वो खत्म हो जाएगी, और 15 + 15 कितने हो जाएंगे, 15 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 10 और इस 15 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 6, तो ये 16 बन जाएगा। यू जस्ट रन दिस कोड and you will find that this 40 to 50 is now gone, और ये 10 to 20 वाला जो है it has gone to 10 से ये 16 हो गया। तो वो ये चेंजेस वही हैं। अगर आप इसको 45 रखना चाहते हो, you keep it as 45, that's not an issue for us. We have to just concentrate कि हमने ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी कैसी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, यू सी हियर, दिस इज द क्वेश्चन हियर इज दैट इज हाउ टू क्रिएट दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मैटप्लॉटलिब के अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए कोई भी डिफरेंट फंक्शन नहीं है, हिस्टोग्राम से ही हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जनरेट करते हैं। और हमें करना क्या होता है, जो हिस्टोग्राम वाला जो मेथड है उसके अंदर हिस्ट टाइप जो उसका एक पैरामीटर है उसको सेट करना पड़ता है एज ए स्टेप। सो दैट इज द वे ऑफ क्रिएटिंग दी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इन मैटप्लॉटलिब। और किसी पैकेज में कोई डिफरेंट फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, हिस्टोग्राम से ही क्रिएट करना है, ठीक है। और इसको कस्टमाइज करने के लिए वी हैव द सेम वे, जैसे हम हिस्टोग्राम को कस्टमाइज करते हैं ऐसे ही हम अपनी ये पॉलीगन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू रखनी है, वाई एक्सिस पे क्या रखनी है, टाइटल क्या रखना है, and if you want to include the legends you can that include the legends also, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हिस्टोग्राम इज द ओनली मैकेनिज्म, वही यही मेथड है। एंड वी हैव टू यूज वन पैरामीटर, दैट इज द नेम ऑफ दैट पैरामीटर इज हिस्ट टाइप, ठीक है। एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, गो थ्रू दिस वन, एंड इफ यू स्टिल फाइंड एनी डाउट एनी क्वेश्चन, सो you are welcome, you can ask any question. Yes, any other question from your side? And the class is very cooperative, so on asking 3 or 4 times no one is keeping the camera in the active states, so I thank you all for extending such a great cooperation from your side. Yes, at the end किसी का कोई question है? So my humble request is please do these questions practically so that you get the confidence that how the question is we are getting the answer, and this is the very straightforward way to achieve good marks in data visualization. And the next method in the pipeline is the box plot, and this method is also very frequently used in research site. Yes, किसी का कोई क्वेश्चन है तो you can ask, or otherwise I will close the class. ठीक है जी। So thank you beta, thank you very much. Thank you, sir.